Good evening, friends, and welcome to Masterstroke, another edition, Saturday, 7th of December 2024. This edition I'm doing from Bombay and Amchi, Mumbai. कहते हैं. Thank you so much for joining. And today's talk is about how do you handle your clients in less time, managing clients in less time so that you can grow your business manifold, you can have a balance of life, and you can be more effective. So I will share 6 slides with you how I manage my clients and how you can think differently. Many of you, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और उसके वजह से टाइम नहीं मिलता उनको बाकी चीजों के लिए. सो आई विल टेल यू, is it possible to handle 100, 200, 300 families in 2 to 3 hours? Let's see. How to handle clients in less time. And the objective of this session is managing existing client and even prospecting. So if you have 150, 200 families and above that, this program is for you. If you have less than 150, 200 clients, you anyways have a lot of time. Okay. The first thing I want to tell you about how to do reviews. You should do quick reviews. Once you hit 150, 200 plus families, you don't have time to give 2 hours to review a client's portfolio. And you have to do it multiple times. So what I do is generally, I spend very less amount of time into client reviews, and I do it very, very methodically. So this is one sample I want to show you. This is what I do with most of my clients, most of the time. So every 2 month, 3 month, 4 month, I write such kind of message to my clients. If you see here, hi, I just reviewed your portfolio. Your latest portfolio is blah, blah, your SIPs, your portfolio returns, asset allocation. And from the softwares, you can run these numbers in less than 30 seconds. There is no action proposed as of now. Most of the time, there is no action proposed. So you tell the client, give them the feeling of the statement, main hoon na, like Shah Rukh Khan says this famous dialogue, main hoon na. The client needs to have the feeling that you are there working behind the scene for him, so he doesn't need to worry. You also have to tell him that everything is not fine, but if there is something which I need to do, I will do it. For example, scheme ABC is under watch list, and if it needs to be changed, I will let you know. This is a very important thing. So you also try to figure out if any scheme is not doing well or there is some changes proposed, it is under the watch list. Always write the statement, I suggest to increase SIPs, it gives support to the portfolio. This is one sample thing. I usually take around 5 minutes to do one client review. Okay. And I can do almost 50 to 75 reviews in one single day from 10 o'clock to 6 o'clock in the evening. And I do it once every 2 to 3 months. This is the fastest way of reviewing the client. And so you connect with 75 clients in one single day through WhatsApp communication. This is too good, and it saves you a lot of time. So this is idea number one, how you can do reviews of the client. It is not necessary to do 1 hour, 2 hour review going in front of the client all the time, because it is impossible for you to meet 100, 200, 300 families and do physical meetings and review the portfolio. Some of the top clients you can always do. I will come to that later. Idea number two is that just don't churn. Fill it, shut it, forget it. Hero Honda ad, remember, minimum churning. Just don't do it, because if you churn, you don't know whether it is right or wrong. You should churn the portfolio only if the client is insisting or you have 8 out of 10 reasons to churn the portfolio. Don't do it just like that. It consumes you a lot of time. It doesn't add up to new AUM. It doesn't add up to growth. So anything you spend your time on, जहां आप अपना टाइम देते हैं, अगर वहां AUM ग्रो नहीं होता तो उस काम को नहीं करना है. ठीक है. चर्निंग करनी ही नहीं है, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चर्निंग करने से रिटर्न ज्यादा आएगा या डिसीजन सही होगा. गलत भी हो सकता है. यानी अगर आपके फायदे में 80% नहीं है, क्लाइंट के फायदे में 80% नहीं है, तो उस काम को करना ही नहीं है. चर्निंग करनी ही नहीं है. चर्निंग सिर्फ नेसेसरी चर्निंग करनी है कि क्लाइंट ने इंसिस्ट किया, 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्लाइंट 2 बार बोल चुका है, तीसरी बार भी बोल रहा है, तो आप चर्न कर दो. अदरवाइज चर्निंग करनी नहीं है. यहां एक और बात बोलना चाहूंगा. कई बार क्लाइंट्स होते हैं 3,000 की SIP करते हैं, 5,000 की करते हैं, 15,000 की करते हैं, और फिर 5-7 सालों में उनके 10-12 SIPs हो जाते हैं, 20-25 फोलियोज हो जाते हैं.
And now the distributor is thinking that, you should not sell more than 5 schemes and 6 schemes. So he wants to consolidate the portfolio. Don't do it unless the client is insisting. Okay. This is going to be the case always. यू नो 5 साल 10 साल में जब तक क्लाइंट बोले नहीं ना बहुत फोलियो हो गए हैं, छोटे छोटे फोलियो हो गए हैं, उनको जोड़ दो, रिड्यूस कर दो, टिल देन यू शुड लेट इट हैपन. अपना समय मत दो इन सब चीजों के पीछे में कि अरे यहाँ 20 फोलियो हो गया है और अभी इसको घटाना है फिर, बिकॉज 20 का 8 करोगे फिर 3 साल बाद 20 होने वाला है. सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. यू डोंट हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज. 200 फैमिलीज हैं, आप सुबह शाम इसी में व्यस्त रह जाओगे. छोड़ दो, इग्नोर करने का इसको. Third, educate the client. The more you educate the client, every question the client asks, give him straight answers, where he knows how to select mutual funds. He knows, educate him to do it himself. To that level. Don't fear कि उसको आ जाएगा तो वो आपको छोड़ देगा. ऐसा होता नहीं है. आपको डर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. यानी जितना ज्यादा क्लाइंट को एडुकेट करोगे ना, वो उतना पसंद करेगा. He will like that and he will stay with you and he will disturb you less often because he now understands the subject so very well. So you have to get to a level where you advise him once or twice every year and rest of the time it is only execution. This will work, I'm telling you. This is the power of education because दुनिया ऐसा नहीं कर रही है. दुनिया इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड कर रही है. वो अपने पास्ट इंफॉर्मेशन को रखती है कि मैं अपनी स्किल आपको नहीं देने वाला हूं. सो मेरे से कोई क्लाइंट पूछता है ना कि कैसे करते हैं, कैसे फंड सिलेक्शन करते हैं. अभी इस प्रोग्राम के पहले क्लाइंट का मैसेज आया, हाउ डू सिलेक्ट फंड्स. तो मैंने उसको पूरा प्रोसेस दे दिया. हमारा फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होता है, वो खुद भी कर सकता है. बट मैं ये डरता नहीं हूं कि वो खुद कर लेगा. करने दो ना यार. मतलब दुनिया में आए हैं, 2 पैसे बना रहे हैं, जी रहे हैं, तो दुनिया का भला भी करना है. और ये जो डर है मन में ना, क्लाइंट खुद से कर लेगा, करने दो यार. और आ जाएंगे. ऐसा होता नहीं है. मैंने तो नहीं देखा कि मैंने किसी को सिखाया वो मुझे छोड़ के चला गया. ऐसा नहीं होता है दोस्तों. नेक्स्ट. This is very important point and you should pay attention to this. What I mean by this, align with the client. Align with the client का मतलब ये होता है कि you are the advisor, you are the distributor, you are the person guiding the client. I agree. You know more with the client. I agree. But you should not dominate the client. You should not tell the client that you are right, the client is wrong. You should not give this impression that you have an upper hand. You should work at the same level with the client. Align with the client means that you recommended schemes A, B, C, and the client says, I want D, E, F, agree and execute. You don't have to prove him why EF is bad and AB is good. Because take the easy way out. Mutual funds सही है. कोई भी कंपनी में डालो, स्कीम में डालो, मोरलेस सही हो जाता है 5-10 साल में. You agree with me? You agree with me or not? Let me check some of the comments on the chat box very quickly. You know, scheme selection doesn't add too much value to the client's portfolio. Eventually, do you agree? So let me say 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many people agree with me? Give me at least 50 yes if you agree with me. Please put your fingers on the keyboard and please respond. So, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so I already got 25 plus response. So this is it. सो क्लाइंट बोलता है मेरे को ये स्कीम में एसआईपी करनी है या मेरे को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दो. इमीडिएटली एग्री विथ हिम दैट या यू कैन डू दिस एसआईपी इन दिस स्कीम और यू कैन काइंड ऑफ सो फ्रिक्शन लेस इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. मतलब क्लाइंट ने बोला एबीसी, आपने बोला एबीसी एएमसी में डालना है, क्लाइंट ने बोला बीसीडी एएमसी में डालना है. एग्री विथ हिम. 90% of the time you agree with him, the friction is less and you do it faster. That should be the objective. Okay, do it faster. कई बार क्लाइंट आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें बताएगा. कई बार क्लाइंट बोलेगा मेरे को कुछ पैसा स्टॉक्स में डालना है. डालने दो ना उसको. क्यों उसको लेंथ पे जाना है बताने के लिए कि स्टॉक्स अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है. अलाइन विद द क्लाइंट. मैंने ऐसा देखा है, इफ यू आर विद द क्लाइंट ही विल बी ओपन विथ यू. Kunal has joined, but give me some time, Kunal, and I will be with you. Sure, whenever I'm here, let me know. Yeah. So what you have to do is that if the client is saying that I have a 3 crore portfolio and I want to invest 25 lakhs in stocks, अगर आप बोलोगे ना स्टॉक्स में मत डालो और ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, अगली बार क्लाइंट बताएगा ही नहीं आपको. करना तो उसको है, ये कर ही लेगा. तो अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि व्हेन द क्लाइंट इज सेइंग दैट मुझे प्रॉपर्टी लेनी है या मुझे इस काम में पैसे लगाने हैं, तो आप उसके साथ अलाइन हो. अच्छा ऐसा करना चाहते हैं, आपको लगता है तो कर लो ना. आपके पैसे हैं, आपको जम रहा है तो कर लो.
क्लाइंट इतना खुश हो जाएगा कि अगले बार वो थोड़ा सा भी कुछ भी काम करेगा ना तो आपके साथ शेयर करेगा। और अगर आप उसको हैसल क्रिएट करोगे, उसके अगेंस्ट में जाओगे, उसको ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करोगे, तो क्लाइंट अगले बार से आपसे डिस्कस करना ही बंद कर देगा। मैटर ही क्लोज हो गया, करना तो उसको है ही है। ठीक है ना? सो डोंट बी अपसेट दैट द क्लाइंट इज टेकिंग मनी आउट फ्रॉम यू एंड ही इज डूइंग समथिंग एल्स। लेट हिम, अलाउ हिम। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ क्लाइंट का मन मिलता है। आपका काम क्या है? क्लाइंट के साथ मन मिलाओ। ओके? रिटर्न्स की बात करना वो फिर छोड़ देगा, फिर वो हर चीज अपनी फैमिली की, अपने इन्वेस्टमेंट की, अपनी दुनिया की बात आपके साथ करेगा, बिकॉज उसको एक दोस्त मिल गया। क्लाइंट का दोस्त बनो। ठीक है? डिक्टेटर नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 5, टू मोर पॉइंट, स्ट्रेटजी फॉर मीटिंग्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल। देखो क्या है कि आपके पास 200 300 400 क्लाइंट्स हैं। इट इज इम्पॉसिबल 500 मतलब 250 वर्किंग डे में आप सबसे तो मिल नहीं सकते। आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं आपके पास जिनके पास आपको जाना पड़ता है ऑफिस छोड़ के। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है? इसको रिस्ट्रिक्ट करो। यू नो, ये जो मीटिंग्स ऑफिस के बाहर आप करते हो ना, इसमें आपका फर्स्ट फिल्टर होना चाहिए जो बहुत छोटे क्लाइंट है उनके पास नहीं जाएंगे, या रेसिस्ट करेंगे, या उनको बुलाएंगे, या फिर चांस लेंगे कि भाई चलो जाता है क्लाइंट तो छोड़ के जाए, लेकिन आपका तो आधा दिन निकल जाएगा। ठीक है? सो ये जो मीटिंग आउटसाइड ऑफिस है, इसको देखो कि आपके कितने क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन माय लिस्ट देयर आर ओनली 40 45 पीपल हु आई गो आउटसाइड एंड मीट। ओवर द years it has reduced. Most of the people, I do meetings on phone or web. Once you are in the business for 5 10 years, this will be the process. और कोविड ने हमें सिखा दिया, वेब पे सारी दुनिया काम करती है, हम भी कर सकते हैं। So you have to reduce meeting outside office is one thing. I'm not saying don't do meetings. You can do 400 500 meetings, and you should do 400 500 meetings. But most of these 400 500 meetings should be on phone and web. Phone means existing client discussions, elaborate discussions, and spend this time of 400 500 meetings into prospect meetings. So first item and second item पे आपको ध्यान देना है कि ये जो बड़े क्लाइंट्स के साथ यहाँ जाना है आपको। ठीक है? ये जितनी भी ऑफिस में मीटिंग करोगे ना, इसमें टाइम ज्यादा नहीं जाता है। दिस इज वेरी इफेक्टिव। यहाँ जाने में वक्त लगता है, आने में वक्त लगता है। यहाँ तो क्लाइंट आया, आधा घंटा बैठा और निकल गया, तो आपकी आधे घंटे में एक मीटिंग हो जाती है। ये बाहर करने की मीटिंग में 3 4 घंटे लग जाते हैं। सो यू शुड कट डाउन ऑन दिस। And you should restrict these meetings with the top 50 clients or 75 clients only, or maybe 10 15 clients from 100 to 200 client। इस तरह से आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल है। बहुत टाइम जाता है मीटिंग्स में, इसको कट डाउन करो। शुरुआत में 40 मीटिंग करनी होती है, मैं बोलता हूँ। और उसके बाद में आपको ये पहला टारगेट है 40 मीटिंग करो, दूसरा टारगेट है 40 में से 20 मीटिंग अपनी ऑफिस में करो या वेब पे करो। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। एंड फाइनली, स्ट्रेटजी फॉर फॉलोअप्स। ये बहुत क्रिटिकल है, जो मैं करता हूं और आपको भी करना चाहिए। एक्सेसिव फॉलोअप नहीं करना है। जैसे जैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है ना, आपके 200 300 क्लाइंट हो गए, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का ईएम हो गया, अभी आपको 2000 के एसआईपी के लिए फॉलोअप नहीं करना है लाइफ में। ओके? डोंट स्पेंड टाइम ऑन 1000 2000 5000 रुपीज एसआईपी फॉलोअप। हाउ यू हैव टू डू? आपके जो टॉप 50 क्लाइंट्स हैं, उनको आपको एक्टिवली फॉलोअप करना है, यानी कि आपकी तरफ से हाई जाना चाहिए उनको, आपकी तरफ से रिव्यू जाना चाहिए, आपकी तरफ से फोन कॉल जाना चाहिए, आपकी तरफ से मीटिंग की रिक्वेस्ट जानी चाहिए। इसको कहते हैं बी एक्टिव विथ योर टॉप 50 क्लाइंट्स। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 50 क्लाइंट्स है ना, लिस्ट बनाओ एयूएम। ये क्राइटेरिया एयूएम का है, थोड़ा फिल्टर एक्सेप्शन डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट 50 क्लाइंट्स जो है ना, उनको प्रोएक्टिव रिस्पॉन्ड करो। मतलब जब उनकी कोई क्वेरी आती है, रिक्वेस्ट आती है, इंस्टेंट इंस्टेंट एक्टिव हो जाओ। मतलब सुपर एनर्जी के साथ में सुपर सर्विस दो, सुपर मीटिंग करो, और ट्रीट देम एज इफ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सामने से जब रिक्वेस्ट आएगी तो फिर मैं उनको सुपर फास्ट सर्विस दूंगा। एक्टिव का मतलब होता है सामने से रिक्वेस्ट नहीं भी आएगी तो मैं उनको अप्रोच करूंगा, बिकॉज इट इज इन माई इंटरेस्ट। बियॉन्ड 100 क्लाइंट्स, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मीन्स सामने वाले की खबर आई तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। यू आर नॉट प्रोएक्टिव, यू आर वेटिंग फॉर हिम टू रिस्पॉन्ड। दिस इज अ स्किल। करते करते सीख पाएंगे आप इस चीज को। ठीक है? मतलब थोड़ा सा डिले करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। और 200 के ऊपर के जो क्लाइंट्स है ना, रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स टेक इट इजी। खबर आई तो अच्छी बात है, फॉलोअप हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। अपने ऑफिस में सर्विस पीपल को दे दो, एक दो बंदे को हायर कर लो जो कि उनको सर्विस करेंगे। डोंट स्पेंड टाइम बियॉन्ड योर नेक्स्ट 200 टॉप 200 फैमिलीज। यहीं पे समय वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस होप में है कि 100 क्लाइंट के ऊपर को इतनी सर्विस दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि कभी वो बड़ा हो जाएगा। नहीं होने वाला। लॉ ऑफ एवरेज इसको प्रूव नहीं करता है। 100 में से 2 बड़े बन जाएंगे, लेकिन उसके कॉस्ट पे आप इसको मिस कर रहे हो जहां पे ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है।
ठीक है. So this is what I wanted to talk about.